Well, thank you everyone for inviting me here and taking a topic which I really appreciate about talking and about Panchkarma, about lifestyle disorders. Let me just share this slide with you. करते हैं Yes, लाइफस्टाइल sir. डिसऑर्डर्स की तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आता कैसे है? Yes, sir. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आता कैसे है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बनता है तीन चीजों से जो हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं। दो चीजें आप सबको पता है, आहार और विहार। आहार वो जो आप खाना खाते हैं, चाहे वो सही हो गलत हो। सही खाना भी आपका अपथ्य हो सकता है अगर वो सही ढंग से ना खाया गया हो या सही टाइम से ना खाया गया हो, राइट। विहार वो जो कहीं ना कहीं आपको आपके सिडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, आपके गलत समय से सोने से या आपके जॉब हैबिट या आपके वर्किंग हैबिट की वजह से। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसके बारे में हम बहुत कम लोग बात करते हैं, दैट इज विचार। विचार का मतलब, if there is something with any issue with your psychological disorders, or when we talk about tridoshas, Vat, Pitta, and Kapha, we have to also look for Raj and Tam. That is the most important thing, because when we talk about Raj and Tam, that is the important part, because all the physical condition and mental state all together forms a disease. Otherwise, a disease is not created. It's never physical, it's never a psychological disorder independently. It's always combined all together. So when we talk about lifestyle disorders, there are some basic lifestyle disorders. When we talk about diabetes, almost 437 million of adults, 9.3% of worldwide population is suffering from diabetes. And when we talk about hypertension, that is 1.13 billion people are suffering from hypertension globally. And if we talk about obesity, that is 650 million of adults are suffering from obesity. When we try to understand about the lifestyle disorders, we have to see that each and every person, if we talk about a ratio, when we sit in front of the screen, all the working people, they are sitting for almost about 11 hours per day. That is a huge, huge number. We are spending almost half of our life in front of screen. And other than that, no, I haven't shared the screen. I'm just representing it. Yes, can you share the screen if possible from your side? Okay, so that when we talk about the conditions, 11 hours sitting in front of the laptop or your screen gives you sedentary lifestyle, sedentary diseases, and postural deformity. And most common are cervical spondylosis, lumbar spondylosis, ankylosing spondylosis. There are many diseases which are related to your spine. Other than that, there are many diseases which happen to women are more likely to have sedentary lives than men, and they are more prone to diseases compared to men. 20% of the adults, 20% of the death happen because of sedentary lifestyle, overweight and diabetes, hypertension. बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो कहीं ना कहीं इसी लूप में, जो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो आपकी डाइट है, जो आपका आहार है, जो विहार है और विचार है, इसकी वजह से डिजीजेस होती है। दैट इज द मेन इशू जो हम आजकल फेस करते हैं। And Ayurveda, why Ayurveda is that important? Why Panchkarma is that important? Because Ayurveda has always mentioned that always look for your healthy condition. If you are healthy, maintain it. If you are unhealthy, then you have to do the treatment on time. But if you are to waiting for a disease to occur, that is the most problematic thing. You have to treat yourself before starting any kind of disease. That is why we have always mentioned to have Panchkarma according to Ritu, that is according to seasons. You don't have to wait for the disease. You have to do a general Panchkarma according to a season, because that indicates when is your kapha aggravated, when is your vata aggravated, and when is your pitta aggravated. According to that, अगर आप पंचकर्मा करते हैं तो वो आपको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। वो आपको हेल्प करता है कि आपकी कोई डिजीज ही जनरेट ना हो, दोष इम्बैलेंस ना हो, बिकॉज disease is all about imbalance of doshas, and imbalance of doshas means when all the doshas, that is Vat with Kapha, that
which can also be your dhatu, that is your sapta dhatu, and your mal, all combined together, and imbalances that causes a disease. कोई भी दोष धातु बन सकता है, कोई भी दोष मल बन सकता है, कोई भी धातु मल या दोष बन सकती है। अगर उसमें इम्बैलेंस हुआ तो वो डिजीज क्रिएट करेगा। अब पंचकर्म क्यों जरूरी है? पंचकर्म के साथ आप अगर पंचकर्म शुरू करते हैं, आजकल पंचकर्म को वी सी पंचकर्मा एज अ डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट, बट पंचकर्मा इज वे मोर देन दैट. Panchkarma helps you to rejuvenate and heal your body from inside, because it helps you to extract out doshas in the form of sanshodhan, or to balance doshas in form of sanshan. या तो वो kindly mute yourself. तो पंचकर्मा दो तरीके से, या तो वो संशमन करेगा, it will pacify your dosha, or it will extract out all the doshas which is aggravated in your body. So if you want to balance all the doshas, panchkarma is required in case of lifestyle disorders. So panchkarma finds the root of the disease. When you talk about Vaman, Virechan, Vasti, Rakta Mokshan, they find out the exact root of the disease, and this is one of the basic part. जब वो किसी दोष को लेकर हमें एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इज द शोधन पार्ट, जब हम इन 5 पंचकर्म की बात करते हैं. अगर हमें डिटेल्ड पंचकर्मा की बात करनी है, जो संशमन चिकित्सा होती है, जिसके अंदर हम कटिवस्ती, ग्रीवावस्ती, जानुवस्ती, जितने भी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है हम उसको लेते हैं, तो उसको प्रैक्टिस किया जाता है. तो जब ये दोनों चीज हम प्रैक्टिस करते हैं, जब दोनों को हम कंबाइन करके चलते हैं, तभी हम प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. So when we talk about dosha imbalance in Ayurveda, health is determined by the balance of three doshas, that is Vata, Pitta, and Kapha. When these doshas are out of balance, they manifest as various health issues. Example, if Vata is imbalanced, can lead to anxiety. If Pitta is imbalanced, it can lead to digestive disorders. And if Kapha is imbalanced, that can lead to some of the issues related to your sleep, related to inflammation, related to arthritis or skin diseases. And there is a similar concept of ama. आम या आम, जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, जो तब बनता है जब हमारी अग्नि स्टेबल नहीं होती. When our digestive fire is not in a stable quantity, that forms ama. And this am is a toxin which is in a improper digestive state, and that stays in the body and accumulates to create more diseases. And this blocking of the diseases, जब ये स्रोतस में जाता है, जब ये हमारे अग्नि को डिस्टर्ब करता है, तब जाके ये डिजीज को क्रिएट करता है. तो कोई भी डिजीज बनने के लिए जरूरी है कि वात पित्त कफ इम्बैलेंस हो. जो हमारे निदान है, निदान क्या हुए हमारे, जो हम ऑलरेडी हमारे आहार, विहार और विचार की वजह से हम क्रिएट करते हैं, और वो ही हमारे आम बना के उस व्याधि को उत्पन्न करता है. अब जब हम डिटेल में बात करते हैं, when we talk about in detail about the panchkarma, they are mainly 5 कर्म, that is mainly for shodhan. First is our vaman. Vaman is something which helps you to extract out kapha, improper or imbalanced or raised kapha, which is already in your body and causing disease in your body. Then when we talk about pith, pith is something we have to do virechan treatment, जिसमें हम विरेचन करते हैं. That is a purgative treatment where we extract out pith from a lower part, और motion के साथ हम उसको करते हैं. Third, that is vasti, जो वात के लिए किया जाता है, और वात के लिए सबसे अच्छी चिकित्सा होती है, और वस्ती को अर्ध चिकित्सा भी कहा गया है, क्योंकि वस्ती से वात को बैलेंस किया जा सकता है. एंड देयर आर मेनी काइंड ऑफ वस्ती. मेनली हम निरु और अनुवासन को फॉलो करते हैं, और उसी के साथ हम उसको वात को बैलेंस करते हैं. अब कोई सी भी कंडीशन है where वात इज इम्बैलेंस, लाइक a case of AVN, a case of ankylosing spondylitis, if I talk about spinal disorders, if I talk about any of the conditions where Vata is imbalanced, along with all the doshas, then we have to go for Vasti treatment. Then the third part is Nasse. Nasse एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जहां पे हम बैलेंस करते हैं जो भी ऊर्जत्रुगत कफ दोषा होता है उसको बाहर निकालने के लिए. Anything which is accumulated in our head region or in our senses, then Nasse is used. And fifth, जो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, that is Rakta Mokshan, bloodletting. There can be different methods for Rakta Mokshan, like Shring Jalokalabu, that is Ashashkrit and Shashkrit. We can go for Shiraved, Prakshan.
There are many methods for it. So when we talk about woman can be used for respiratory conditions. Now imagine if you are taking something which is already causing a disease. अब ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आते कैसे हैं? आप जो भी खा रहे हैं, ऑब्वियसली हर कोई जंक फूड या कोई भी ऐसा खाना जरूर खाता है जो पैलेटेबल होता है, बहुत टेस्टी लगता है। जरूरी नहीं कि वो हेल्दी हो, हर बार कोई भी हेल्दी इतना फॉलो नहीं करता, बट अगर आप ऐसे कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, इफ यू आर कंबाइनिंग सम फूड विच इज नॉट ससेप्टेबल फॉर योर बॉडी एंड मेकिंग अ दूषी विश that creates a disease. Now, if we talk about this douche wish, this is something which accumulates for a very long time. It does not occur like if you have taken something just today, create a disease. That is very rare. That can just show a symptom and that is not very much aggravated. तो अगर ऐसा होता है, आपकी बॉडी में वैक्यूमुलेट होता है, तो धीरे धीरे वो डिजीज को क्रिएट करता है और वही दूषी विष जाके जब आम बनाता है और बाकी व्याधियों को उत्पन्न करता है आपके आहार विहार और विचार से, तो उससे बहुत सारी डिजीज होती है। अगर हम वमन की बात करें, वमन कहाँ जरूरी है? जहां पे कफ एक्यूमुलेटेड है, देन द इंडिकेशंस आर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मेनली skin disorders, digestive disorders, obesity. These are some of the common issues where we have to do Vaman karma. If you think that a patient is going towards this extent, you must follow Vaman karma according to the season. That is Vasantik Vaman. वसंत में आपको वमन करना है ताकि दोष एक्यूमुलेट ही ना हो और आपको डिजीज ही क्रिएट ना करे। Second is the procedure to do this Vaman karma is the same. That is, we have to do Snehan and Swedhan, that is oleation and sedation treatment, followed by emetic treatment, that is Vaman karma. And after that, we have to do the Pashat karma. The benefit of this treatment is to heal all the respiratory disorders, digestive disorders, to balance kapha disorders, and to improve the digestion. When we talk about Virechan, when there is imbalance in the Amasya and Pakwasya, that is the important part because Agni stays in Amasya. और जब वहां पे पाचक पित्त आपका डिस्टर्ब होता है तब जाके वहां पे डिजीज बनती है। जब आपका समान वायु डिस्टर्ब होती है तब जाके वहां अग्नि डिस्टर्ब होती है और व्याधि बनती है। एंड इसकी वजह से पित्त के डिसऑर्डर शुरू होते हैं। एंड पित्त के क्या कारण होते हैं? रक्त पित्त है, कामला है, पांडु है। दीज आर सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस जिसकी वजह से ये डिजीजेस या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से आपकी व्याधि उत्पन्न होती है। और ये जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, दे आर वेरी कॉमन। और आजकल अगर आप चाहते हैं कि आयुर्वेद को फॉलो करना या आयुर्वेद को आगे बढ़ाना या आयुर्वेद के अंदर प्रैक्टिस करना, तो ये जरूरी है इन डिजीजेस को समझना, क्योंकि तभी आप आयुर्वेद की मदद से उसको जल्दी ठीक कर सकते हैं। और लोग चाहते हैं कि आप आयुर्वेद को यूज करके उसको ट्रीटमेंट को करें। तो सेम तरीका है, जहां पे आप शोधन करते हैं वहां पे आप स्नेहन स्वेदन करते हैं। स्नेहन स्वेदन के बाद आप कुछ ऐसे विरेचन द्रव्य देते हैं, विरेचन द्रव्य के बाद आप विरेचन कराते हैं। दिस इज द प्रधान कर्म, जहाँ पे आप उसको करते हैं और पित्त को बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से आपके जितने भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं, जीआई डिसऑर्डर्स है, and if I talk about skin disorders, they are very much helpful to treat all the diseases. और मेनली जो पित्त की डिजीजेस रहती हैं, जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस है, या अम्ल पित्त है, वहां पे आप इनकी मदद से उस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट विच इज वेरी 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 एसेंशियल, वो है वस्ती। वस्ती is one of the treatment where you can use to balance vata condition, and this is known as ardha chikitsa. That is, half of the treatment is done if you are doing vasti correctly, and this treatment can be used to balance vata, where vata if a patient is having a condition of imbalanced vata state, or joint pain, or arthritis, or any of the state where vata has to be balanced, and there is too much of dryness, too much of shitata, too much of any of the gunas, if that is disturbed, that can cause a disease of vata, and for that vasti is required. Vasti, if I simplify, vasti is one of kind of a one of the disease, one of the condition where we have to do enema, and this enema can be of two types, that is oil treatment or the decoction part. आप इसमें नीरू और अनुवासन यूज करते हैं, जहाँ पे आप क्वाथ यूज कर सकते हैं या ऑयल यूज कर सकते हैं और इस ट्रीटमेंट को करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द फोर्थ वन, दैट इज नस्य। नस्य ऊर्जत्रुगत रोगों के लिए सभी में यूज किया जाता है, और ऊर्जत्रुगत के रोग जितने भी हैं, दैट इज इफ एनीथिंग रिलेटेड टू योर स्मेल, आई,
if anything related to your all of your senses, even your touch, even your nervous system, नस से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है. एंड बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जहाँ पे नस से बहुत अच्छा काम करता है. Paralysis condition में if you do not say, that works very well. In case of hypertension, Nasse works very well. In case of insomnia, in case of kapha imbalance, in case of रक्तपित, Nasse works very well. तो अगर आप इसको continuously practice करते हैं in a form of प्रतिमर्श और मर्श, even in a condition of seasonal allergy, sinusitis, Nasse works very well. तो आप उसमें नस्से अगर करते हैं तो वहां पे काफी ज्यादा ये हेल्पफुल रहता है. और जितने उधर वो जो पहले आते साथ है, kindly mute yourself. जहाँ पे भी ऐसी डिजीजेस हैं जो आपके पोल्यूशन से रिलेटेड है या आपको ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है जहाँ पे पोल्यूशन की वजह से ये डिजीज एग्रीवेट होती है, आपको कोई एलर्जी कंडीशन की वजह से डिजीजेस एग्रीवेट होती है, तो वहां पे नस्से बहुत अच्छा काम करता है. अगर किसी को बहुत ज्यादा कफिंग है, सीजनल एलर्जी है, खांसी बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में अगर आप नस्से के साथ उरोवस्ती अगर आप करते हैं इन केस ऑफ ब्रोंकाइटिस और इन केस ऑफ एस्थमा, दैट वर्क्स इवन वंडर्स, और आप उसको यूज कर सकते हैं. एंड इस सीजन में बहुत सारे पेशेंट इस चीज के कॉमन रहते हैं, तो यू शुड प्रैक्टिस नस्से अलोंग विद उरोवस्ती. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रक्तमोक्षण. Raktmokshan is another treatment to bloodletting with the help of Shrink Jaloka Alabu. These are the three treatments where we have to balance Vat, Pitta, and Kapha. Leech is mostly used where leech can suck out all the intoxicated blood, and also to balance Pitta state. So leech can be done in case of skin diseases, in case of gout, in case of any blood diseases which is present superficially. But this can only be done in a limited area, so you have to decide accordingly. If you have to work on the whole body, then Shira Ved is done. If any disease is happening, in the whole of the body, then Shira Ved should be done. About the Urovasti, Urovasti is one of the treatment. If you can ask all your questions at the end because there are more of slides. Okay. Other than that, there are more treatment like Abhyang, Swedan, Shirodhara, external Vasti like Merudund Vasti, Katig Vasti, Griva Vasti, Kshitarpan. There are many treatment. And we are already helping everyone to understand about Ayurveda and Panchkarma. We are already showing how Panchkarma works. And even we do a workshop where we teach about these Panchkarma treatment. I wanted to show you some case studies, but somehow I'm not able to share the slides. I'll try to share afterwards or on my Instagram handle, where I wanted to show you some of the diseases to skin diseases, which is said to be incurable according to allopathy. It was a case of psoriasis, and the patient was of 45 age, male. I'll share you all the case studies later because I wanted to show you how that works, but I'll show you, I'll tell you what was the diagnosis. So what happened? There was a black grayish lesion on the hand, face, and foot from past 10 years with itching and burning. And he was taking immunosuppressants to subside his. Okay, it is already shared. Okay, thank you so much. You can see the case study presented in the first. जहाँ पर एक psoriasis patient है, he was taking allopathic medicines from past 5 years and it was spread to whole body. With the condition of Vata Kapha imbalance, there was accumulation of ama. So what we did, we managed the Agni first, we digested ama, we did Deepan Pachan first, and most important, विरोधाहार को आपको बिल्कुल छुड़वाना होगा, निदान परिवर्जन आपको करना होगा, and look for दूषित. Then the Nidan Parivarjan was done, avoided all the causes. Vata and Kapha balance was done. Srota Shodhan was done with the help of medications only. And Vaman followed by Virechan. If required, you have to do in the patient. In this patient, we didn't do any of the karma. Only least treatment was done. 2 to 3 sittings were done in a gap of 1 week. And you can see the results. It was a drastic change within 2 months, within 3 months. And you can see clear hands. Second case is a patient of SGOT, SGPT rise
SGOT was 70 and SGPT was 116. This is a very common thing, and you can see most of the patients with fatty liver nowadays. So that is very common. After giving a treatment for almost about 2 months, that came down to almost half, and the SGPT, SGOT level was perfectly fine. Now, why SGOT, SGPT increases? If I talk about the prognosis behind that, होता क्या है, जब भी आप कोई निदान सेवन करते हैं, that accumulates in your body. आपका आम जब बनता है, और आम बनने के बाद सबसे पहली धातु बनती है रस धातु, रस के बाद रक्त धातु, रक्त बनने के लिए रंजक पित्त जो रंजन करता है, इन यकृत एंड प्लीहा there is more of accumulation of ama that flows with your rakt, and rakt is the accumulation or the combination of ras dhatu plus rakt dhatu. जब रंजक पित्त के पास वो जाता है, वो एक्यूमुलेशन वहां पे जाके एग्रीवेट करता है और वहां पे एक्यूमुलेशन करता है, दैट कॉजेस फैटी लिवर, और उसी की वजह से एसजीओटी एसजीपीटी आपके डिस्टर्ब होते हैं, एंड दैट कॉजेस मच ऑफ डिजीजेस, और वो आगे जाके आपके धातु को भी डिस्टर्ब करना शुरू करता है. तो यहाँ पे हमने काम उसी पे करना शुरू किया. वी स्टार्टेड the patient was having a complaint of indigestion, hyperacidity, loss of appetite, and bloating. His cholesterol level was 225, SGOT, SGPT was 70 and 160. Nadi was Pitta and Vata. The liver is in a place of Pitta, so we have to see that Pitta has a nature of Ushna, and it handles the condition of metabolic and biochemical functions and produces energy and heat. So Kapha has a cold and stabilized nature. When Kapha dosha rises above normal level, it suppresses Pitta, and the function of the supporting the liver it decreases it. It causes fatty liver and causes disturbance in the Rakta Dhatu. It shows that the predominance of all three doshas happens due to accumulation of Ama and causing imbalance in Vata, Pitta, and Kapha. So initially we have to do Nidan Parivarjan, that then we have to do Pitta balance, because Ranjak Pitta is the main area for in liver and spleen. And then the Srota Sodhan is done, and we maintain the digestive fat. So this was the treatment we did to balance and to take the desired result in Ayurveda. So this is the thing, and these are some common diseases which we see every day. If we talk about liver diseases, if we talk about kidney diseases, if we talk about obesity, digestive disorders, bloating, these are very common diseases. And other than that, hormonal disorders, PCOD, PCOS, infertility, these are very common diseases. And if I say about thyroid, PCOD, PCOS, these are not specifically diseases. ये कोई बीमारी नहीं है, ये hormonal imbalance है. इसमें जरूरी नहीं हमेशा कोई मेडिकेशन यूज करें, जरूरी नहीं है. ये बिना मेडिकेशन के भी इसको बिल्कुल किया जा सकता है, ये बिल्कुल बैलेंस किया जा सकता है. तो अगर आप PCOD, PCOS, हार्मोनल डिसऑर्डर्स किसी को भी ट्रीट कर रहे हैं, सो लुक फॉर द कंडीशन फर्स्ट. उनके आहार विहार और विचार में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस मिलेंगे, जो आप अगर बैलेंस करेंगे तो उसको इजीली आप ट्रीट कर सकते हैं. सम ऑफ द इनफर्टिलिटी केसेस कैन only be treated without medication. That is also possible, because that is happening because of some of the reason related to mental disorders or any psychological disorder or stress or anxiety. You have to look for the condition. आपको वो देखना होगा क्या स्पेसिफिक कंडीशन है. हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरा अगर आप निदान पूर्व उपशय संप्राप्ति तक आप जाते हैं, तभी आप डिजीज को डिटेक्ट करके जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है आप उसको बैलेंस कर सकते हैं. So this was it for today, and if you have any question, you can unmute yourself, you can ask your question. Sir. Yes. Hello, sir. Yes. Hello. गुड इवनिंग सर. थायराइड के लिए कुछ जानना चाहते हैं. थायराइड में कौन सा पंचकर्मा थेरेपी सही रहेगा? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. डू यू वांट टू आस्क कि पीसीओडी के लिए कौन सा पंचकर्म अच्छा रहता है? Am I right? नहीं सर, थायराइड के लिए. ओके, सी, जब भी हम थायराइड या पीसीओडी की बात करते हैं, वहां पे कफ एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है, कफ के डिस्टर्बेंसेस रहते हैं. अब हम स्पेसिफिकली नहीं जाएंगे कि कफ की वजह से है, तो इसलिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि जहां पे दुष्टि
होती है, तो रस धातु से ही अगर हम दृष्टि को देखते हैं उसमें, तो वहीं से हमें देख के ये एक पूरे सर्कल की तरह है, रस से स्टार्ट होकर रक्त पे जा रहा है और वहां से शुक्र पे आ रहा है। तो बेसिक सी चीज अगर आप उसको समझेंगे तो वहां पे पहली चीज तो आपको कफ का स्थान है, कफ की व्याधि है, कफ किससे मिलना है, अगर उसके साथ कोई और है तो आप उसको देखेंगे, वरना आप डायरेक्टली उसमें वमन के लिए जाएंगे। आप उसमें वमन कराएंगे, वो काफी बेनिफिशियल रहेगा। सिर्फ ये ध्यान रखेंगे, अगर नोड्यूल्स बहुत ज्यादा हैं प्रॉब्लम, या आपको बहुत ज्यादा थायराइड साइज में बढ़ा हुआ दिख रहा है, या थायराइड वैल्यूज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, पेशेंट को चोकिंग होती है या बोलने में दिक्कत होती है, उस कंडीशन में वमन नहीं कराएंगे हम, उसमें नस से धूमपान करेंगे, अदरवाइज यू कैन फॉर वमन। ओके सर, थैंक यू सर। सर डैंड्रफ एंड ऑल में सर कैसे क्या करेंगे सर? अगर डैंड्रफ की कंडीशन है सी, वही आपको देखना होगा एक्सटर्नल। अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो कोई भी स्कैल्प ट्रीटमेंट आपको करना है या स्कैल्प में स्किन डिसऑर्डर्स से रिलेटेड है, तो बेस्ट इज टू डू स्टार्ट विद तक्रधारा और धान्यम्ल धारा। आप उसको अगर करते हैं तो ये काफी बेनिफिशियल उसमें रहेगा। सर वन मोर क्वेश्चन प्लीज सर। सर हेलो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम आजकल बहुत हो रही है सर, इसमें कौन सा थेरेपी सही रहेगा और क्या इसमें परहेज क्या जरूरी है, किस वजह से हो रही है ये? इतना जनरलाइज बात करेंगे ना, मेरे ख्याल से हम सभी लोग यहाँ इसी फील्ड से हैं, बीएमएस फील्ड से हैं और या मेडिकल फील्ड से हैं, कहीं ना कहीं इतना जनरलाइज नहीं होता कि अगर स्टोन है तो हमें क्या चीज करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। आपको दोषों को देखना पड़ेगा। आपको व्याधि का नाम पता हो ना पता हो, दैट डजंट मैटर, बट यू शुड नो अबाउट दोषा इम्बैलेंस। आपको दोष पता होगा, उसी का निदान परिवर्जन करें, वो तो आपकी पहली डाइट हो गई। और जो उसके लिए ट्रीटमेंट करना है, अब जो भी किडनी स्टोन है वो क्यों एक्यूमुलेट हो रहा है, क्यों, किस लिए सॉलिडिफाई हुआ है, किसी भी स्थान को रोकने के लिए कफ काम करता है, कफ अभिषेध करता है, कफ रोकता है। और जो उसके अंदर जितना भी द्रव्य रहे, चाहे वो पित्त हो सकता है, वो वात भी हो सकता है, अगर वो उसको सॉलिडिफाई कर रहा है, उसको अंदर कर रहा है, तो वो स्टोन क्रिएट कर सकता है। आपको देखना है वो कौन सा वाला है, और इसकी चिकित्सा भी प्रमेय अध्याय में दी गई है, क्योंकि प्रमेय अध्याय का मतलब ये पूरा जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में है। तो अगर आप प्रमेय अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको उसका ट्रीटमेंट समझ में आ जाएगा इजीली। सर कैन यू एलाबोरेट सर लंबर पेन about या जो नी पेन में कौन सी थेरेपी सर सबसे? बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ हो गए सर। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। मैं Yes. इंटर्न हूँ 2017 बैच का, प्रभात कुमार शर्मा। मेरे पास सर एक पेशेंट आया इमरजेंसी में। पेशेंट को स्टंट पड़ा है कार्डियक में, और एग्जामिन करने के बाद पेशेंट का कफ बढ़ा हुआ है, एनोरेक्सिया है पेशेंट को, साथ में उसको दिक्कत हो रही है, पेट भी साफ नहीं हो रहा है, जिह्वा परीक्षा के बाद भी उसका टंग जो है पोटेड है। ठीक है। तो सर हम उसमें विरेचन दे सकते हैं और वोमन दे सकते हैं, या कुछ अलग ट्रीटमेंट दे सकते नहीं, हैं? देखिए आप शोधन चिकित्सा पे नहीं जाएंगे, पेशेंट को ऑलरेडी स्टंट है, तो आप ऐसी चिकित्सा पे नहीं जाएंगे जहां पे एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा। तो आपको उसके अलावा संशमन चिकित्सा ही यहाँ पे करनी पड़ेगी, या आपको वस्ती के लिए जाना होगा। स्टार्ट विद उरोवस्ती या हृदय वस्ती, और उसके बाद आप अपना निरु और अनुवासन वस्ती पे आप जाएं, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। पहले उनको बल्ले वस्ती दें, या आप खाली मात्रा वस्ती दें, और उसके बाद आप शोधन वस्ती शुरू करें। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपने पीसीओडी के जैसे बोला कि आहार विहार और विचार, तो सर हम आहार विहार तो पेशेंट को हमारे इससे कर देते हैं, लेकिन विचार की चिकित्सा कैसे करनी है? क्योंकि सर मोस्ट ऑफ पेशेंट ऐसे रहते हैं पीसीओडी के जो इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट होते हैं, तो वो उनमें मेन जो हेतु रहता है वो विचार ही रहता है। तो हम काउंसलिंग तो करते हैं सर, लेकिन जो पेशेंट का अदर जो टाइम है उसमें ज्यादा ओवर थिंकिंग ज्यादा रहता है। राइट। सी, आयुर्वेद में सांत्वना चिकित्सा भी बताई गई है, आपको सांत्वना चिकित्सा करनी है। हाँ यस सर। तो पेशेंट को आपको समझाना पड़ेगा। अगर पेशेंट, बहुत सारे, मैंने बोला कि कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको मेडिसिन देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इनफर्टिलिटी केसेस में। प्रॉब्लम मेट्रोपॉलिटन सिटी में पेशेंट के पास टाइम ही नहीं है। अगर टाइम नहीं है अपनी बॉडी के लिए या प्रॉपर्ली कंसीव करने के लिए, तो कंसीव होगा कैसे? तो यही चीज आपको समझानी पड़ेगी, पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा। तो मेंटली रिलैक्स रहना है। इट्स नॉट काइंड ऑफ अ प्रोसेस। कंसीव करने की कोई प्रोसेस नहीं है। आप जब उसको अच्छे माइंड से, हेल्दी माइंड से जब कंसीव करने का प्लान करते हैं तभी हो सकते हैं। इसलिए गर्भ संस्कार जरूरी है। आप उसको बैलेंस करना शुरू से स्टार्ट करें।
पेशेंट को अपने अंडर ले, वो हेल्दी है या नहीं है। पेशेंट को अगर आप शुरू से समझाना शुरू करेंगे, उसका एटलीस्ट 5-6 महीने पहले से वो अपने बारे में सोचना शुरू करेगा, माइंड मेकअप करेगा, तो आराम से जो भी कंसीव करेगा वो इजी होता है। और ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ कंसेप्शन जो 9 मंथ्स रहते हैं वो भी इजी रहते हैं। नमस्कार सर। थैंक यू सर। हेलो नमस्कार सर, सर। लंबर Good evening, पेन sir. सर या मस्कुलर Good स्पाज्म evening. में सर कौन सी थेरेपी पंचकर्म में कर सकते हैं? फिर से बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, एक बार फिर से। लंबर पेन या मस्कुलर स्पाज्म कुछ करके है सर, तो उसमें कौन सी थेरेपी यूज कर सकते हैं, मतलब ट्रीटमेंट के तौर पे? पहले तो आप ये देखेंगे कि वहां पे आम तो नहीं है। अगर आम है तो आप कोई पंचकर्मा नहीं करेंगे, सिर्फ आप रूक्ष वस्ती करेंगे या रूक्ष पोटली करेंगे। अगर आम वहां पे नहीं है तो आप वहां पे कटी वस्ती के लिए जा सकते हैं या मेरुदंड वस्ती कर सकते हैं। सर ठीक, सर, कफज thank- हृदरोग में गुड उर्वस्ती इवनिंग देंगे? सर सर या आई थिंक मेरा आप कर सकते हैं इसको। आप एक एक कोई जो भी स्टूडेंट है आप एक बार में उनका नाम लेके या तो आप अनम्यूट कर सकते हैं उसको। सर पूर्व कर्म में हम गुरुत्वपान सबसे मेन बताया सबने, गुरुत्वपान करना बहुत जरूरी है। पर आजकल जो पेशेंट्स मेजोरिटी आ रहे हैं उनको गुरुत्वपान में ही बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मतलब मेनली वो बोलते हैं कि गुरुत्व नहीं जमता है या फिर मॉडर्न एज ग्रुप। घृतपान अगर आपको जरूरी है शोधन करना, और जो पेशेंट आपके पास आ रहा है जिसका शोधन करना है वो पेशेंट आप ये मान लीजिए बहुत जगह से घूम के आने वाला है, और जो भी आप ट्रीटमेंट बताओ वो डेफिनेटली करेगा। बट वो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है कि आप पेशेंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको समझाते हैं कि व्हाई यू नीड टू हैव दिस घी। तो आपको उसको समझाना पड़ेगा और उसकी अग्नि के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो पंचकर्म लेके ऑलरेडी आए हैं, बट उनका प्रॉपरली दीपन पाचन नहीं होता, प्रॉपरली घृतपान नहीं होता, प्रॉपरली वमन विरेचन नहीं होता, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होते हैं। आधे पेशेंट तो इस चीज से डर जाते हैं। तो ध्यान रखें, पेशेंट की पंचकर्मा शुरू करने से पहले यू शुड गिव टाइम टू हिज बॉडी टू रिकवर, अदरवाइज वो बैलेंस नहीं होगा। जब आप उसको समझाएंगे तो आराम से वो घृतपान करेगा। सर कफज हृदरोग में हम सर उर्वस्ती देंगे? अगर Yes, कफज आंचल। हृदरोग में सर उर्वस्ती देंगे? One at a time. गुड इवनिंग सर। सर आंचल यादव। Yes. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बताया नस से हम लोग बॉडी पैरालिसिस में भी दे सकते हैं, तो अगर फुल बॉडी पैरालिसिस है तो उसमें नस से अगर हम दे रहे हैं तो उसके बाद तो धूमपान भी इम्पोर्टेंट है, तो वो नशे के कैसे साथ होगा? हमेशा मतलब धूमपान वो आएगा, वो बाय डिफॉल्ट है। नशे के साथ धूमपान आएगा, वमन के साथ धूमपान आएगा, वो आएगा ही आएगा। तो सर पेशेंट जिसे रिप्लाई नहीं कर रहा है, वो उठ नहीं पा रहा है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो फिर वो पॉसिबल कैसे होता है? मतलब नहीं, उसके अलावा और कौन सी उस ट्रीटमेंट दे सकते उस हैं? पेशेंट की कंडीशन में आप डायरेक्ट धूमपान नहीं देते हैं। आप धूपन जला के पेशेंट के पास रखते हैं ताकि वो जो नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है उसके साथ वो इनहेल हो। और सर इसके अलावा कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कुछ आप बताइए प्लीज। अगर उसको पूरा पैरालिसिस है, फुल बॉडी पैरालिसिस है। फुल बॉडी पैरालिसिस है, तो आपको पहले तो ये देखना है कितना टाइम पीरियड हुआ है। अगर उसको मस्कुलर एट्रोफी हो चुका है तो सबसे पहले आपको उसकी मसल्स को रिटेन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको षष्टिशाली पिंड स्वेद करना है और वात की चिकित्सा करनी है। वात का चल गुण जब खत्म होता है, जब उसको कफ रोक लेता है, तब जाके पैरालिसिस होता है। तो उस चल गुण को बढ़ाने के लिए आपको कफ का लेखन करना है। तो कफ का लेखन करें, वात का चल गुण को बढ़ाएं, वस्ती शुरू करें और साथ में षष्टिशाली पिंड स्वेद स्टार्ट करें और बाकी मेडिकेशन से उसको बैलेंस करें, तो आराम से पेशेंट रिकवर होता है। अगर वो अर्ली स्टेज में है, या इतने चांसेस जरूर हो जाते हैं जहां पे वो अच्छा रिकवर होके थोड़ा सा अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। और सर अगर जैसे पेशेंट बहुत पुराना है, मतलब 7-8 साल हो गए हैं, तो अगर बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नहीं है, आप एक ट्रीटमेंट करें, उसकी डोसेज बढ़ा के देखें। अगर उसमें इंप्रूवमेंट आता है उसको आपको थोड़े से लंबे टाइम तक फॉलो अप करना पड़ेगा ट्रीटमेंट को। ओके सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हेलो सर। सर। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। हेलो सर। सर कफज हृदरोग में उर्वस्ती देंगे? किसमें? कफज हृदरोग में? कफज हृदरोग में आप उर्वस्ती दे सकते हैं, और बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऑयल आपको जो स्पेसिफिकली चूज करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। सर संधिवात में कौन सा पंचकर्म करेंगे? हेलो सर। हेलो हेलो सर। हमारा सेशन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स एंड पंचकर्मा था। सबको सर, ये जानना है संधिवात कि में- कौन सी वैरायटी में कौन सा पंचकर्म होगा। हेलो सर। क्या सर, बोला है हम कि BSN में- संधिवात में क्या क्वेश्चन था?
हेलो सर, गुड इवनिंग। यस यस केशव, गुड बोले इवनिंग। कि सर संधि बात में सर 2-3 साल से संधि बात है, उसमें कौन सा पंचकर्म है, क्या आहार विहार अपनाएंगे सर जो सही रहे? देखो संधिवात है, सिंपल सी चीज है। संधिवात के अंदर वात ज्यादातर एक्यूमुलेशन रहता है और खा वेगुन्य उसके अंदर कफ की वजह से ही है। ठीक है, तो संधिवात के अंदर आपने वो चिकित्सा करनी है, जैसे इसके अंदर चिंचावस्ती बताई गई, आप उसको यूज करें। ठीक है, चिंचावस्ती कर सकते हैं, सेंधावादी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप करेंगे उससे रिलीफ मिलेगा। बट संधिवात से भी ठीक हो सकता है, तो डायरेक्टली पंचकर्मा के लिए भी जाने की जरूरत नहीं है, मेडिसिन से ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है। कौन थोड़ा सा सा तेल मतलब यूज होता है सर सनने के लिए, सनैन के लिए सर कौन सा तेल अच्छा होता है यूज करने के लिए? देखो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, बहुत सारे ऑयल हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको जज करना पड़ेगा। पेशेंट की मुझे डिटेल दो आप पूरी, तो मैं आपको बता सकता हूँ स्पेसिफिकली कौन सी आप मेडिसिन या क्या यूज कर सकते हैं। सर मुझे लगभग मतलब 2-3 साल से, मतलब पहले तो आजकल राइट मतलब शोल्डर में ज्यादा पेन होता है और सर राइट नी में सर पहले उतना नहीं, मगर वो जब कोई भी तेल मालिश करने पे आराम हो जाता है सर। मैं वैसे बात महार योगराज गुगुल लेता था बीच में, फिर छोड़ दिया हूँ 10-15 दिन से। नहीं ये डिटेल नहीं हुई। हाँ डॉक्टर केशव, आप मुझे बाद में डिटेल्स भेजिएगा, ठीक है, जहाँ पे मुझे आपकी पूरी डिटेल चाहिए होगी तो मैं आपको बताऊंगा कैसे, तो फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो सर, हेलो सर। पंचकर्मा से सर हृदय हेलो वैसे सर। इफेक्टिव है क्या ईएफ बढ़ाने में इन डीसीएम केसेस? इन केस ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, अगर ईएफ किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन जो है लोअर साइड पे है, पेशेंट एचएफ की तरफ जा रहा, तो हृदय वस्ती हमारी कितनी की इफेक्टिव होगी उसका ईएफ बढ़ाने में? हृदय वस्ती आप कर सकते हैं, साथ में आप पोजिशनिंग करेंगे, पेशेंट को टिल्ट डाउन करेंगे टुवर्ड्स द हेड और उसका पैर रेस करके उसको कम से कम 40 to 45 मिनट्स डेली आप ट्रीटमेंट करेंगे। राइट सर, हृदय वस्ती इफेक्टिव रहेगी हमारा ईएफ बढ़ाने में, या वो एग्रीवेट करेगी पेशेंट की कंडीशन को अगर वो ऑलरेडी एचएफ में है? एग्रीवेट नहीं करेगी, क्योंकि आप उसके जो भी ऑयल यूज करेंगे बहुत ज्यादा ऊष्मा यूज नहीं करेंगे, आप उसमें बैलेंस रखेंगे, शीत द्रव्य औषध ज्यादा यूज करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको रिलीफ देगी, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। सर हेमरेजिक स्ट्रोक का ओके, सो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं एंड ऑलरेडी आप सब लोग एक ग्रुप में होंगे, मेरे ख्याल से आपके पास पीपीटी आ चुकी होगी एंड मेरा यही पर्पस है कि आप सब लोग जो भी यहाँ हैं वो कैसे न कैसे किसी न किसी फॉर्म में आप आयुर्वेद को फॉलो करें, और हमारा भी यही मिशन है कि हम 100 वैद्यों को बनाएं ताकि वो 100 वैद्य आगे जाके आयुर्वेद को फॉलो करें और आयुर्वेद को आगे बढ़ाएं। इसी मिशन के साथ हम चल रहे हैं, इसलिए मेरा यही पर्पस रहता है सब जगह आप जहाँ पे भी देखे हैं सोशल मीडिया पर, कि हम आयुर्वेद को जितना चाहते हैं और आयुर्वेद को बढ़ाना चाहते हैं, और आप सबसे भी यही मैं कहूंगा कि आप आयुर्वेद को हमेशा फॉलो करें और उसी को लेके चलें। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आ सकते हैं या डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और वहां से आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड अगर कोई भी आप सब में से अगर कोई आयुष सीजन में आ रहा है, जो हम 3 days रेसिडेंशियल वर्कशॉप करते हैं देहरादून में, अगर आप में से कोई यहाँ आ रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ मिल सकते हैं, जिसमें हम क्लिनिकल ट्रेनिंग करेंगे, प्रैक्टिकल वे में आयुर्वेद पंचकर्म को पूरा सिखाएंगे, पैरासर्जिकल मेथड सिखाएंगे, ये सारी चीजें रहेंगी। उसकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी हमारे इंस्टाग्राम पर हैं, तो जो भी है आयुर्वेद को फॉलो करो, आयुर्वेद को आगे लेके चलो और आयुर्वेद को आगे जितना हो सके उतना बढ़ाओ और आगे सबको सिखाओ। थैंक यू एवरीवन।